on Tuesday. Today we are going to study John's Gospel chapter 6, Matthew chapter 14, Mark 6, Luke 9, then John 6. All these passages are parallel passages. In all these 4 chapters in the Gospels, we read about that great miracle Jesus did, feeding 5,000 people and their families with 5 loaves. So today we will concentrate on John's Gospel chapter 6. When I started studying this, I found in this chapter more things which I did not know until recent times. So we will be reading from 47 to 56. 47 से लेके 56 तक हम आज पढ़ेंगे. Verily, verily I say unto you, he that believes on me hath everlasting life. I am the bread of life. Your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. This is the bread which comes down from heaven, that a man may eat thereof and not die. I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. The bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. The Jews therefore strove among themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat? Then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of Man, drink his blood, ye have no life in you. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life. I will raise him up at the last day. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him. As the living Father has sent me, and I live by the Father, so he that eateth me, even he shall live by me. Okay, we'll leave there. I am sure that the difficult passage for us to understand. Many false doctrines came into existence because of difficult passages in the Bible, which people did not understand properly. लोग मुझसे बार बार एक सवाल पूछा है, एक ही बाइबल है, क्यों इतना चर्चस है? There is only one Bible. Why there are so many churches? The simple answer is, when people read the Bible, instead of understanding it with the help of the Holy Spirit, they made their own interpretations.
and their followers simply believed what their pastor said or what their priest said. So on the basis of this portion which we read, Jesus says that you have to eat me. You have to eat my flesh. In the Catholic Church, they have developed a doctrine that is Holy Communion will give you whole eternal life. So we will come to that one afterwards, but let me just say what I found in this chapter. In the coming days, we will be concentrating on this chapter because there is so much to learn in this chapter. First thing, we see Jesus Christ in this chapter in a very unique way. How Jesus is found in this chapter. So I will show you 7 verses afterwards. Today I am not going to do that. यीशु मसीह को हम एक अलग रीति में इस अध्याय के अंदर देखते हैं. पहला बात यह है. दूसरा बात यह है, इस यूहन्ना का सुवार्ता में यीशु मसीह का 7 दावाएं हैं. 7 great I ams of Christ. Jesus said, I am the bread of life, I am the light of the world, I am the way, the truth and the life, I am the resurrection and life. Like that, Jesus made 7 great I am claims. The first I am is found in this chapter. I am the bread of life. So on the basis of this verse, I am the bread of life, we will see all those 7 great I ams. So that is the second study which we are going to make on this chapter. Third is, towards the end of this chapter, Jesus spoke about Iscariot Judas. आखिरी में जब आते हैं 71, यीशु यहूदा के बारे में कुछ बातें कहा है. इसलिए बहुत लोग यहूदा को एक विश्वासी पीछे हट गया उस रीति से देखना चाहते हैं. There are many people who like to see Judas as a believer who has backslidden. But what did Jesus say about this man? So this is not the only reference to Judas. There are 3-4 more references in the Gospel of John. So we will see all those things. So a study to find out who exactly Judas was. That will be the third study which we are going to make from this chapter. Fourth one is based on this portion which we read from 47 to 56 or 57. There, how this false doctrine came into existence. Here verse 51, Jesus says, I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा. जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए
दूंगा वो मेरा मांस है। इसका अर्थ क्या है? देखो, यीशु के साथ जोड़ के 3 शरीर है। द फर्स्ट वन इज हिज फिजिकल बॉडी इन विच ही लिव्ड। एक मनुष्य शरीर इस दुनिया में प्रभु लेके आया, उस शरीर। दूसरा है एफेसियों का पत्री 1:23 में, हम उसमें नहीं जाएंगे, मंडली को उसका शरीर बोला। यीशु मसीह सिर है, मंडली उसका शरीर है। उसको हम बोल सकते हैं मिस्टिकल बॉडी है, एक रहस्यमय शरीर है। वो देख नहीं सकता है, ऐसा नहीं है, पर प्रभु मंडली को उनके साथ जैसा एक शरीर और सिर साथ में जोड़ा है, उस रीति में देखना चाहते हैं। So it is called the mystical body. Jesus is the head of the church, and church is compared to body. So it is a comparison Jesus has made. How closely we are connected to Christ. How Christ is controlling us, directing us. As our head controls us. मैं कई बार बताया, यदि एक चींटी मेरे पैर में काटता है तो तुरंत उस बात को सिर में पहुंच जाएंगे, ब्रेन में पहुंच जाएंगे। ब्रेन तुरंत आंख को एक ऑर्डर देगा। The brain will give an order to the eye or eyes. Immediately go there and find out what is the problem there. So eyes will go and it will see one hand is biting there and it is biting very tightly and it is remaining there. So that is communicated. Then there is an order to the hand. You just go there and destroy or finish up that hand. That is how the Lord Jesus wants to control us. Everything what happens in our life, as believers, we should communicate to Christ and we have to live according to the order which we get from the Lord. So that is the mystical body. Third one is the symbolic body. That is what 1 Corinthians chapter 11, participating from the Lord's table, from the bread and the wine. And it is for the remembrance of the Lord. So Luke's Gospel 22:19, Jesus said, do this for the remembrance of me. 22:19, Luke. And he took bread and gave thanks and brake it and gave unto them, saying, this is my body which is given for you. This do in remembrance of me. So why do we participate from the Lord's table and break bread? It is to remember the body of Christ, how he suffered for us, how he died for us. So it is not for receiving eternal life. It is to proclaim the death of Christ. One more verse, 1 Corinthians 11:26.
1 Corinthians 11:26. For as often as ye eat this bread, drink this cup, you do show the Lord's death till he come. We proclaim the death of Jesus Christ. जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो. We proclaim the death of Christ. We say together, yes, 2000 years before, this Jesus who came into this world, he died for me, he suffered for me. That we proclaim every time when we participate from Lord's table. It is not for getting eternal life. In order to get eternal life, what a person has to do? John 3:16. John 3:16. We all know that verse. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए. Somebody said, the greatest book in the world is the Bible. The greatest book in the Bible is John's Gospel. The greatest chapter in John's Gospel is chapter 3. The greatest verse in chapter 3 is verse 16. दुनिया में सबसे बड़ा पुस्तक बाइबल है. बाइबल में सबसे बड़ा पुस्तक यूहन्ना का सुवार्ता है. यूहन्ना का सुवार्ता में सबसे बड़ा अध्याय तीसरा अध्याय है. ये तीसरा अध्याय में सबसे बड़ा कलम 16 कलम है. इधर क्या लिखा है? For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. इस कलम के अंदर 6 बातें हम देख सकते हैं. 2 बातें ईश्वर किया है, 2 बातें मनुष्य कर सकते हैं, और उसका परिणाम मनुष्य जो करेंगे उसके आधार पर 2 परिणाम निकलेंगे. 2 things God did for us. 2 things people can do. On the basis of what these 2 things what people do, there are 2 consequences. So what did God do? God loved us, so loved us. Then God gave his only begotten Son. 2 things God did. And what are the 2 things people can do? Who can believe and not to believe. These are the 2 things people can do. So if you believe, you will get everlasting life. If you don't believe, you will perish. ये perish होने का अर्थ भी मैं थोड़ा बताना चाहता हूं. अभी सोच लो, आप कुछ सब्जी लेके आया और वो ताजा रहने के लिए आप जितना फ्रिज के अंदर जा सकता था सब फ्रिज के अंदर रख दिया, और सब फ्रिज के अंदर नहीं गया इसलिए कुछ आपने बाहर रखा. 1-2 दिन के बाद अंदर जो था वो एकदम फ्रेश रहा. बाहर जो रखा है उसका हालत क्या होगा आपको मालूम है. इसी प्रकार यदि हम हमारा जीवन को प्रभु के हाथों में दिया, हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा, नाश नहीं होगा. यदि हम नहीं दिया तो हमारा जीवन नाश होने वाला, उस व्यक्ति का जीवन नाश होने वाला. चलिए, अनंत जीवन पाने के लिए
यीशु पर विश्वास करने का है। इसके बदले में रोमन कैथोलिक्स क्या सिखाते हैं? जितने बार आप होली कम्युनियन ले गए उतना आपको आनंद जीवन मिलेगा। इधर प्रभु यीशु मसीह होली कम्युनियन के बारे में नहीं बता रहा है। ये समझने के लिए हम इधर से कुछ कलम देखेंगे। वर्स 44, John 6. Yeah. This is all from John 6. How Jesus used different words. 44. No man come to me. 45 again. Linson, no need to. 45 again. Therefore, everyone who has heard and learned from the Father comes to me. Heard and learned comes to me. जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है. So coming to Jesus. Okay. Verse 47, Jesus is using another word. Most assuredly I say to you, he who believes in me. मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है. और बाद में यीशु बोल रहा है 51 में, 53 में, 54 में, यू हैव टू ईट मी. जो ये रोटी खाएगा, यदि कोई इस रोटी में से खाए, बार बार यीशु बोल रहा है, एक ही बात बोल रहा है. ईश्वर से सुन के समझ के यीशु के पास आया, मतलब इसको स्वीकार करके उनके स्वीकार किया. दूसरा है जो मुझ पर विश्वास करते हैं. और तीसरा शब्द उपयोग किया है मुझको खाने का है. इसके पहले हमको मालूम है यीशु 5 रोटी से 5000 लोगों को खिलाया. देखो, खाना देखने से, खाना बहुत अच्छा है बोलने से किसी का भूख नहीं मिटेगा. जहां खाना पहुंचना है उधर पहुंचना है. दवा जब में रखने से बीमारी नहीं मिटेगा. राइट, दिस इज द राइट मेडिसिन. You have kept it in your pocket, but it has to reach where it is supposed to reach. Then only the sickness will be cured. The same way, Jesus has to come into our very being. बाइबल में कहते हैं हमारा हृदय में. हृदय का अर्थ क्या है? हृदय का अर्थ है जो हमारा जीवन का केंद्र, व्यक्तित्व, उसमें यीशु मसीह आने का है. चलिए, इधर जो बोला हुआ बात है यीशु को खाने का है, इसका अर्थ क्या है? यीशु को हमारे जीवन में स्वीकार करना है. जैसा शरीर का भूख मिटने के लिए हम साधारण खाना स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार हमारा आत्मिक भूख मिटाने के लिए यीशु मसीह जो जीवन का रोटी है उसको हमारे जीवन में स्वीकार करना है. इसके बारे में यीशु बता रहा है. डॉक्टर बिली ग्रैहम ऐसा बोल रहा था, there is a God shaped vacuum in every man's heart. ईश्वरी
पूरा कर सकते हुए एक खाली जगह सबके जीवन में है. God alone can fill that. Nothing else in the world. It is made for God. So God wants to be in our very being. He wants to come to our life. So Jesus is saying, you have to eat me, then only you will have eternal life. So this is this portion which we read, verse 47 onwards. It is not about the Lord's table. It is not the Catholic's Holy Communion. It is about receiving Jesus Christ into a person's life so that he may receive eternal life. Eternal life. So this is one great false doctrine the Catholics have made from this portion. So there are similar verses in the John's Gospel. Four verses more I will show you. Then our today's study will be over. John's Gospel chapter 2. We all know what happened there. Jesus changed water into wine. Another great miracle. But here we read that Mary came and informed Jesus that their wine is over. Verse 3. When they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, they have no wine. So the argument people make, जब और यीशु और उसके चेले भी उस व्याव में नेपते गए थे, but in Hindi it is probably the next verse. जब जागरस घट गया तो यीशु की माता ने उसे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा. Okay. So Jesus came to know that shortage of wine through his mother. So what is the teaching the Roman Catholics have made from this? So you go to Mary and tell your problems to her, then subsequently she will go to Jesus and present your problem or needs there. So there is a doctrine made. Mary is made the mediator. Okay. The first thing, Jesus did at least 35 miracles which are recorded in the Bible. 35 miracles. Out of them, only in this miracle, Mary is involved. In all these 35 miracles, suppose the order was like this, people had some problem, they went to Mary, then Mary came and told Jesus the problem of the people. Jesus went and helped them or healed them, or whatever way they should be helped, Jesus helped. No, other than this one miracle, nowhere else Mary is seen. So this is an isolated incident, and nobody can make a doctrine on this isolated incident. इसलिए इधर हमको ऐसा समझने का है, यीशु ने 35 चमत्कारें किया, एटलीस्ट बाइबल के अंदर इतना रिकॉर्ड करके रखा है, और हर चमत्कार में लोग पहले मरियम के पास गया, मरियम को बता दिया, मरियम जाके यीशु को बताया, यीशु जाके उनको मदद किया.
ये ऑर्डर था, फिर तो नो प्रॉब्लम, ऐसा ही करने का है, ऐसा नहीं है। ओके, पहला तिमोथी 2:5, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 5। There is one God, one mediator between God and men, the man Christ Jesus. परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बीच में ही है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। देखो, एक ही मध्यस्थ परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, दूसरा कोई मध्यस्थ नहीं है। एक परमेश्वर, एक मनुष्य जाति, ये दोनों के बीच में एक ही मध्यस्थ यीशु मसीह है। दूसरा मध्यस्थ के लिए उधर जगह नहीं है। और दूसरा बात, एक मध्यस्थ कैसा होना है? ये मध्यस्थ दोनों पार्टियों को बराबर समझने का है। मध्यस्थ को दोनों को भाषा मालूम होना है, वो है मध्यस्थ। यीशु मसीह परमेश्वर होने के कारण पूरा परमेश्वर को 100% समझ सकता है। मनुष्य होने के कारण मनुष्यों को पूरा 100% समझ सकता है। इसलिए यीशु परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ होने के लिए हर रीति में योग्य है। ये हमको समझने का एक बात है। दूसरा कलम देखेंगे, मैथ्यू's Gospel chapter 11 verse 28, Matthew 11:28. This is a very well known verse which we all know by heart. Jesus says, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, come unto me." ये सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। So Jesus is inviting people to come to him directly. सीधा उसके पास आने के लिए एक विश्वासी को अनुमति है। जब यीशु के शिष्यों को ढूंढ के यीशु गया, अलग अलग जगह से उनको ढूंढ के लेके आया, कोई उनके साथ गया नहीं है। यीशु जाके उनको मिला, उनके साथ बात किया, बोला मेरे पीछे आओ, उन लोग सब पीछे आया। The issue, he is totally 100% approachable to all people, whether you are big or small. You can go to Christ straight. He is approachable. He calls people and saying, "You come to me." Okay, one more verse. Hebrews chapter 4 verse 16. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. ऊपर लिखा है 15 में लिखा है, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses. क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। 16, please show 16. इसलिए आओ, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले, कि हम पर दया हो, वह अनुग्रह पाए, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। ये किसके पास बुला रहा है? यीशु मसीह हमारा महायाजक है।
वो अनुग्रह का सिंहासन पर बैठा है। कर चलो उनके पास, ताकि हम अनुग्रह पाए, सहायता पाए। उसके लिए हमको सीधा उनके पास बुलाया। देयर इज नो मीडिएटर। हम सीधा उनके पास जा सकता है। फिलिपियंस 4:6। Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplications with thanksgiving, let your request be made known unto God. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। ये कितना क्लियर है। एक विश्वासी अपना जीवन का कोई भी समस्या हो, सीधा प्रभु के पास जाके बोल सकते हैं। उसके लिए अनुमति है। उसको कोई मध्यस्थ का कोई जरूरत नहीं है। ओके, ये बाइबल का सच्चाई है। इसके बदले में आज क्या क्या सिखाता है? मरियम का मध्यस्थता, उसको दूसरा किसी भी बात के साथ तुलना नहीं कर सकता है। अभी बीच में मैं एक प्रीस्ट ऐसा बोल रहा था, बहुत बातें यीशु से मांगा, नहीं मिला, मरियम के पास जाके मांगा, मिल गया। देखो क्या सिखाता है। जिन लोगों को बाइबल ज्यादा मालूम नहीं है, सच्चाई क्या है मालूम नहीं है, ऐसा सिखाने वाले का बात के पीछे चले जाएंगे। इसलिए यीशु हमारा एक ही मध्यस्थ है। हम यीशु के पास सीधा आ सकता है। लोग जब यीशु इधर था सीधा उनके पास गया। आज भी विश्वासी लोगों को सीधा उसके पास आ सकता है। एक पापी मनुष्य को उद्धार पाने के लिए उसके पास सीधा आ सकता है, दूसरा किसी का जरूरत नहीं है। ओके, तीसरा बात, ये दूसरा बात है, गलत उपदेश, प्रभु का वचन बराबर ना सीखने से लोगों को सिखाते हैं। तीसरा अध्याय यूहन्ना, इसका 5वां कलम में, John's Gospel chapter 3 verse 5. Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसमें से वो जल को लेके एक भयंकर गलत उपदेश सिखाया। उसको कहते हैं बैप्टिस्मल रीजनरेशन, बपतिस्मा के द्वारा नया जन्म। ये बपतिस्मा का पानी एक बच्चा के ऊपर छिड़काते हैं, वो बच्चा का नया जन्म होता है। ये उपदेश इस कर्म के आधार पर है। इधर जल का अर्थ क्या है? अध्याय 4 में आइए। बाइबल के अंदर सब जगह में जल बोला है तो जल नहीं है। उसका 13 और 14 कलम, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 4 13 and 14. Jesus answered and said unto her, whoever drinks of this water shall thirst again. यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई ये जल पिएगा उसको प्यास लगेगा। Verse 14. But whoever 14. But whoever drinks of this water that I shall give him
shall never thirst. परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। इधर यीशु दो पानी के बारे में बताया। 13 में जो पानी के बारे में बताया कौन सा पानी है? साधारण पानी, हम रोज पीते हैं वो पानी के बारे में, वो साधारण पानी। 14 में जो बोला है वो पानी अलग है। यीशु जो जीवन देता है उसके बारे में है, प्रभु का वचन के बारे में, अनंत काल तक प्यास ना होगा इसके बारे में। पहला पत्रोस 1:23, पहला पोप है पत्रोस, कैथोलिक के टीचिंग के अनुसार। ये पत्रोस इसके बारे में क्या बोला, एक व्यक्ति कैसा नया जन्म पाता है। 1 Peter chapter 1 verse 23, being born again not of corruptible seed but of incorruptible, by the word of God which liveth and abideth forever. By the word of God, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवदे और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। कैसा एक व्यक्ति नया जन्म पाता है? यूहन्ना 3:5 में यीशु मसीह बोला पानी से और आत्मा से। पानी क्या है? प्रभु का वचन है। पहले एक व्यक्ति वचन सुनना है, जैसा हम अभी यूहन्ना 6वां अध्याय में देखा है, whoever hears learns from my father, understand then believe। प्रभु का वचन एक व्यक्ति सुनना है। मुझको भी बचपन में बच्चों का बपतिस्मा दिया था और 20 साल उम्र में मैं प्रभु यीशु को स्वीकार किया, और कोई मुझको कुछ विश्वासियों का बपतिस्मा के बारे में सिखाया नहीं है। ये बात भी आप ध्यान से सुनो। वर्तमान में क्रिश्चियन के बीच में 3 प्रकार का बपतिस्मा है। एक है बच्चों का, दूसरा बड़ों का, तीसरा विश्वासियों का। ये पहले 2 बोला है वो दोनों गलत है, बाइबल के अनुसार नहीं है। बाइबल में कोई बच्चों को बपतिस्मा नहीं दिया है, बड़ों को भी नहीं दिया। इसलिए बच्चों का बपतिस्मा, बड़ों का बपतिस्मा बाइबल के अंदर नहीं है। बाइबल के अंदर एक ही बपतिस्मा है, वो विश्वासियों के लिए, वो पाप का क्षमा के लिए नहीं, पाप का क्षमा पाए वो उनके लिए, स्वर्ग में जाने के लिए नहीं, स्वर्ग में जाने वालों के लिए, नया जन्म पाने के लिए नहीं, नया जन्म पाए हुए के लिए। चलिए, इधर जो पानी बोला है प्रभु का वचन है। एक विश्वासी, पाप क्या है, इसका परिणाम क्या है, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, पापी को परमेश्वर का दंड मिलने वाला है। उसी समय यीशु मसीह का मरण के कारण विश्वास करने वाले को पाप का दंड से बच सकता है। ये सब वचन के द्वारा एक व्यक्ति समझता है। समझने के बाद पवित्र आत्मा का मदद से वो व्यक्ति एक नया सृष्टि बन जाता है। 2-3 साल पहले नवंबर 8 तारीख को हमारा प्रधानमंत्री नोटबंदी किया, और थोड़े समय के बाद, थोड़े दिनों के बाद, उस समय लोग सब बहुत पाल के जैसा दौड़ रहा था। ये पैसा सब क्या करेंगे, वो लोगों को मालूम नहीं था। फिर वो सब थोड़ा शांत होने के बाद मैं एक दिन बैंक में गया। जितना पुराना नोट मेरे पास था वो सब लिख के एक काउंटर में दिया। 15-20 मिनट के बाद दूसरा काउंटर से मेरा नाम बुलाया। जब मैं उधर गया, मेरा पुराना नोट के बदले में नया नोट मुझको मिल गया। उस दिन मैं एक बात समझ लिया, नया जन्म पाने का अर्थ क्या है। हमारा पुराना जीवन
हम प्रभु के पास रख दिया, दे दिया, और उसके बदले में प्रभु हमको एक नया जीवन दिया है, एक नया शुरुआत, नया जीवन। इसलिए पहला कोरिन्थी, दूसरा कोरिन्थी 5:17 में हम पढ़ते हैं, यदि एक व्यक्ति यीशु मसीह में है वो नया सृष्टि है, एक नया शुरुआत, नया आरंभ। पुराना बातें सब चला गया, देखो सब बदल गया, जीवन बदल जाता है। ये बपतिस्मा के द्वारा नहीं होता है, और बाइबल के अंदर कहां भी बपतिस्मा के साथ जोड़ा हुआ बातें देखेंगे तो पहले उन लोग विश्वास किया, अपना पाप को कबूल किया, उसके बाद बपतिस्मा लिया है। तो बच्चों को समर्पित करना वचन के अनुसार है। यीशु को मंदिर में लेके गया, समर्पित किया, इसमें कुछ गलती नहीं है। वो समर्पित करते समय में उसके ऊपर कुछ पानी छिड़का के, और ये बपतिस्मा है, इसके द्वारा ये बच्चा को नया जन्म मिल गया, ये बच्चा स्वर्ग जाने के लिए लायक हो गया, ऐसा कोई सिखाता है तो पूरा बाइबल के विरुद्ध में है। ओके, ये तीसरा बात है। 14 बात आइए, यूहन्ना 19:27, जॉन 19:27। ट्वेंटी 26 से हम पढ़ेंगे। 26:27, when Jesus therefore saw his mother and the disciples standing by whom he loved, he saith unto his mother, woman, behold thy son। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को देखा जिससे वह प्रेम रखता था, पास खड़े देखकर अपनी माता को कहा, ए नारी, देख ये तेरी पुत्र है। वर्स 27। नेक्स्ट वर्स, then saith he to the disciple, behold thy mother, and from that hour that disciple took her unto his own home। तब उसने चेले से कहा, उस चेले से कहा, ये तेरी माता है, और उसी समय ऐसे ही वह चेला उसे अपने घर ले गया। इधर से एक दूसरा गलत उपदेश आज दुनिया में सिखाया, यूनिवर्सल मदरहुड ऑफ मैरी। और इधर यीशु एक शिष्य को देके बोला है, सब शिष्यों को बुला के ऐसा नहीं बोला है, देखो ये तुम्हारे माता है, तुम्हारा माँ है, ऐसा नहीं बोला है। सब शिष्यों को बुला के नहीं बोला है, एक शिष्य को बोला है। और परिणाम क्या हुआ, वो शिष्य मरियम को उनके घर में लेके गया। क्या समझने का है इधर से, यीशु के बाकी भाइयों थे, यूहन्ना 7:3 से 5 हम समझते हैं, उन लोग विश्वासी नहीं थे। यीशु मसीह का पुनरुत्थान तक उन लोग विश्वास नहीं किया। 7:3 से 5, टाइम का अभाव से मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, आप बाद में पढ़ के देखो। उन लोग पुनरुत्थान तक विश्वासी नहीं था, यीशु के खिलाफ में था, यीशु का आलोचना कर रहा था। They used to criticize, they were not prepared to believe। अभी मरियम को एक विश्वासी का प्रोत्साहन, तसली का जरूरत है। वो इनके द्वारा नहीं होगा, ये भाइयों के द्वारा, मैरी का दूसरे पुत्रों के द्वारा नहीं होगा। इसके लिए उनको एक विश्वासी के पास थोड़े समय के लिए सौंप दिया। बाद में यीशु के पुनरुत्थान के बाद ये भाइयों सब विश्वास किया। प्रेरितों का काम 1 अध्याय में
और मरियम भी पहला प्रेयर मीटिंग में आई, ये भाइयों भी आया। इसलिए उधर मरियम को यूनिवर्सल सबका मां नहीं बनाया। मरियम हमारा प्रभु का मां है, हम बहुत आदर के साथ उसको देखते हैं। उस जमाने में जब यीशु को इस दुनिया में आना था, सारा जगत में ईश्वर जब ढूंढा, ऐसा एक ही लड़की को मिला, एक पवित्र जीवन जीने वाली लड़की को मिला, उसको हमारा यीशु मसीह का मां बनाया। वो हमारा प्रभु का मां है, हम उसको आदर देते हैं। ओके, आखिरी बात, यूहन्ना 20:23, ये पांचवा गलत उपदेश यूहन्ना का सुवार्ता से लोगों कैथोलिक लोग सिखाते हैं। 20:23, if you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you retain the sins of any, they are retained. जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। जिनके तुम रखो, वे रखे गए हैं। Going to a priest and confessing your sin, priest has the power to forgive your sins. ये बाइबल के खिलाफ में है। मैं आपको बहुत कलम दिखाना चाहता था। परमेश्वर को ही पाप क्षमा करने का अधिकार है। यीशु मसीह परमेश्वर है, इसलिए हमारा पाप क्षमा करने का अधिकार है। पहला यूहन्ना 1:9 में हम पढ़ते हैं, यदि हम हमारा पाप को कबूल करेंगे तो वो न्यायी और धर्मी है हमारा पाप क्षमा करने के लिए। यीशु को ही अधिकार है। अरे इसका अधिकार मतलब क्या है? इस कलम का अर्थ क्या है? यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे हमारा पापों को क्षमा करने और हमारे सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासी हो गया और धर्मी है। हम हमारा पाप यीशु मसीह के सामने कबूल करते हैं, उसका अधिकार है, उसको हमारा पाप क्षमा करने का अधिकार है, दूसरा किसी को नहीं। तो इधर का अर्थ क्या है? इसका 21 पढ़ेगा तो यीशु यूहन्ना 20:21 पढ़ेगा तो आपको मालूम है ये कौन सा कॉन्टेक्स्ट में बताया, संदर्भ क्या है। Here यीशु मसीह बोला, as the Father has sent me, I also send you. सुवार्ता प्रचार करने के लिए यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। As my Father has sent me, even so I send you. इधर यीशु मसीह अपना शिष्यों को सारे जगत में भेजता है, लोगों को सुवार्ता प्रचार करने के लिए। सुवार्ता प्रचार होने के बाद लोगों से दो प्रतिक्रिया हो सकता है। कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग इनकार करते हैं। यदि एक व्यक्ति बोलता है, मैं समझ लिया यीशु कौन है, इस यीशु ही उद्धार करता है, मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, मैं इधर मेरा पाप यीशु के सामने कबूल करता हूं, ऐसा जब एक व्यक्ति बोलता है, उस व्यक्ति को देखे तुम्हारा कबूलत के आधार पर आज ईश्वर तुम्हारा पाप क्षमा किया है, ऐसा बोलने का अधिकार हर एक विश्वासी को है, हर एक सेवक को है, सुवार्ता प्रचार के लिए जो जाते हैं। उसके बदले में यदि एक व्यक्ति सब सुनने के बाद इसको इनकार करता है, उसको देके हम बोल सकते हैं, तुम तैयार नहीं है तो तुम्हारा पाप ऐसा ही रहेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। ये है अधिकार। इसके बदले में फादर के पास जाके पाप को कबूल करने का, confessing your sins before a priest, saying that he has the right and the authority to forgive sins. No, only Jesus can forgive sins. But if anybody received that forgiveness from Jesus by confessing his sin,
as a child of God, as a servant of God, one who communicated the gospel to him, he has the right to say, on the basis of your confession, your sins are forgiven. Today onwards, now onwards, you are a child of God. इसके बदले में कितना गलत उपदेश, ये सब यूहन्ना के सुवार्ता से अलग अलग कलम निकाल के कितना गलत उपदेश सिखाया और सिखाते हैं। इसलिए हमको जानना है वचन का सच्चाई क्या है। ये आज रात मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। प्रभु इन वचनों को आशीष करे, हम सच्चाई को जानें, समझें और दूसरों को समझाएं। इसमें ईश्वर इस वचन का प्रचार के द्वारा हम सबको मदद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो। Request Naveen to pray and then take the quiz. अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं परम पिता परमेश्वर, आपके वचनों की सच्चाइयों के लिए। आपने हमें अपनी उन सच्चाइयों को आपके वचनों के द्वारा प्रकट किया पिता परमेश्वर। हम देखते प्यारे पिता परमेश्वर, आपका वचन सबों के लिए एक सा है, लेकिन लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार अलग अलग व्याख्या करते हैं, उनको अलग अलग बताते हैं और अलग तरीके से अपने जीवन में अप्लाई करते हैं कि प्यारे पिता परमेश्वर। लेकिन हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्यारे पिता परमेश्वर, आपने इन सच्चाइयों को हमारे सामने प्रकट करके रखा है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हम जिस प्रकार आपके वचनों को समझना चाहिए, जिस प्रकार आपने अपने जिन उद्देश्यों के साथ आपने अपने वचनों को लिखा है, आपने हमें दिया है, उन सारे उद्देश्यों को अपने जीवन में हम लागू कर सके, उन सारी बातों को अपने जीवन में लागू कर सके और वैसे ही आप में आगे बढ़ सके। पिता परमेश्वर, हम सबकी सहायता करे। स्वर्गीय पिता, आज के वचनों के द्वारा हमें आशीष दे, हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें आत्मिक रीत से आगे बढ़ने के लिए और बलवंत होने के लिए और वैदिक मजबूत होने के लिए हमारी सहायता करे। सारी बातें आपके चरणों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के मीठे नाम मांगते सुनकर कबूल करे पिता, आमीन।